Good morning, students. Today we are going to learn the new chapter hydrocarbon. Now, first, what do you mean by hydrocarbon? Hydrocarbon are the compounds containing carbon and hydrogen only. That means what? When carbon combine with hydrogen, they form a compound and that is called hydrocarbon. We already know that the valency of carbon is what? 4. That means what? Carbon needs 4 electrons to complete its octet. So when carbon combine with the 4 hydrogen, or we can say when carbon and hydrogen they both combines, they form the compound and it is called hydrocarbon. Now, according to the bond between the carbon atoms, we can classify hydrocarbon into 3 categories depending upon the bond. Bond means what? Either they are having single bond, that is a carbon-carbon atom, they are having single bond, or they are having double bond or triple bond. According to their bond, we can classify hydrocarbon as saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, or aromatic hydrocarbon. Now see, the hydrocarbon that contain only carbon-carbon single bond. That means when carbon-carbon atoms having single bond, then it is called saturated hydrocarbon. When carbon-carbon having single bond, then it is called saturated hydrocarbon. These includes open chain hydrocarbon. That means what? The saturated hydrocarbon, the figure presentation, it may be presented in the form of long straight chain or as a closed chain. Okay, like a ring. So these compounds are called saturated because they have maximum number of bonded hydrogen. They are having what? Maximum number of bonded what? Hydrogen. That means what? These are called saturated because as already I told you that the valency of carbon is what? 4. So when carbon gets 4 hydrogen, so it is known as what? Saturated hydrocarbon. It is known as what? Saturated hydrocarbon because now carbon is having what? Maximum number of hydrogen. What is 4? Okay. If different carbon atoms are joined together to form an open chain of carbon atoms with single bond, they are called alkanes. When the carbon-carbon having single bond, they are known as what? Alkanes. They are known as alkanes. It is base. It is what? Base. Always remember, when carbon-carbon having single bond, so it is known as what? Alkanes. And it is what? Saturated hydrocarbon. So, the hydrocarbon, it may be presented in the form of a straight long chain or as a closed ring. As a closed ring. That means in both the ways you can represent the same formula either in a straight long chain form or in a form of closed chain, closed ring. So now the hydrocarbon which contain carbon-carbon multiple bond. Carbon-carbon multiple bond means when the carbon-carbon atom having double bond or triple bond between them, it is known as what? Unsaturated hydrocarbon. When carbon-carbon having multiple bond, that is double or triple, it is called unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbons are weak hydrocarbons. It may be easily break, okay? And saturated hydrocarbon is what? Strong. So depending upon multiple bond, they are further classified as alkenes or alkynes. So see, if we remove the number of hydrogen, then the bond will increase here. So when the carbon-carbon having double bond, it is known as what? Alkenes. And when the carbon-carbon having triple bond, it is known as alkynes. Now, aromatic hydrocarbon. When the hydrocarbon which contain at least one special type of hexagonal ring of carbon atom with 3 double bond in the alternate position are called aromatic hydrocarbon, and the ring is known as aromatic ring. What is said? The hydrocarbon which contain at least one special type of hexagonal ring. Hexagonal ring means what? 6 side. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Okay. So it is what in shape? It is the shape is what? Hexagonal. Ring means what? Closed figure. Ring means what? Closed figure. And they are having alternate double bond. देखो यहाँ पे एक double bond है, ये single bond, फिर double bond, फिर single bond, फिर double bond, single bond. So they are having alternate double bond, है ना? ये alternate double bond है और इसमें क्या attach है आपका? CH3 methyl. So this is called aromatic ring. इसको क्या बोलते हैं? Aromatic ring. ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकता है. इसको बोलते हैं aromatic ring. Now, the types of hydrocarbon can be summarized as hydrocarbon types. पहले क्या बताया था? Saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon एकदम सिंपल है, बस याद रखो जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है उसको हम क्या बोलते हैं? Saturated hydrocarbon. और इसी को एक और नेम क्या है आपका? Alkanes. ठीक है, यहाँ पे क्या आता है आपका? सिंगल बॉन्ड आता है. एग्जाम्पल क्या है? CH3, CH2, CH3, प्रोपेन. फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एल्कीन्स और एल्काइंस. एल्कीन्स में क्या होता है? डबल बॉन्ड आता है, जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है. और एल्काइंस में क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है. ठीक है. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? रिंग बनता है. क्या बनता है? रिंग. आपका हेक्सागोनल रिंग बनता है, उसमें अल्टरनेट क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है. जैसे इसका एग्जाम्पल क्या आपका? बेंजेन रिंग है. ठीक है. नाउ एल्के एल्केन्स. एल्केन्स क्या बताया था मैंने? जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स. ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड यहाँ पे, और ये जो है आपका बेस होता है. ठीक है. देखो एल्केन्स का क्या दिया है? एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल. मतलब यहाँ पे कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है? सिंगल बॉन्ड आता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स. इसी को हम क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं. एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डू अंडरगो सम रिएक्शन. मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है. जो सिंगल सिंगल जो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ये सैचुरेटेड. देखो जैसे अगर मैंने बोल दिया सैचुरेटेड है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इजीली ब्रेक नहीं होता है. तो उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है? इसमें रिएक्शंस होते हैं. The alkanes may be divided as open chain or acyclic alkanes or cycloalkanes or cyclic alkanes. फिर से बता दे रहे, देखो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है. एल्केन्स क्या होता है? जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है उसको हम एल्केन्स बोलते हैं. चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? कार्बन से अटैच होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के कारण इसको अगर इसमें रिएक्शन कराना है तो इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. इसी को हम पैराफिन भी बोलते हैं. अब यहाँ पे जो एल्केन्स है उसको हम दो तरह से शो कर सकते हैं. ओपन चेन के फॉर्म में शो कर सकते हैं या फिर उसको हम क्लोज्ड फिगर में भी शो कर सकते हैं. ओपन चेन जो होता है उसको हम एसाइक्लिक एल्केन्स बोलते हैं, और जो रिंग बनती है उसको हम साइक्लो एल्केन्स या फिर साइक्लिक एल्केन्स बोलते हैं. ठीक है. ओपन चेन और एसाइक्लिक एल्केन्स. ओपन चेन कैसे होता है? देखो यहाँ पे ओपन चेन एक फिगर, ये आपका फॉर्म फिगर दिखा रहा है. ये आपका एक कार्बन है और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की. तो यहाँ पे 1 2 3 4, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन हो गए. 4 हाइड्रोजन. ठीक है. इसको बोलते हैं मीथेन. इसका नाम क्या है? मीथेन, है ना. CH4, एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? 4. CH4, इसका नाम क्या है? मीथेन. ठीक है. सो दीज आर सिंपल एल्केन्स विदाउट एनी क्लोज्ड चेन और हैविंग द जनरल फॉर्मूला वेयर. अच्छा, इसको लिखने का एक फॉर्मूला भी होता है ना. कार्बन कितने एटम्स आएंगे, हाइड्रोजन कितने एटम्स आएंगे, उसको लिखने का एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2. यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करो, आपको कार्बन और हाइड्रोजन आ जाएगा. जैसे कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा? C1. और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 + 2 4 हो गया, तो CH4 बना. क्या बनेगा? मीथेन. CH4. ठीक है. एक कार्बन है तो मीथेन होता है, एक कार्बन है तो क्या होता है? मीथेन. 2 पुट कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, C2. और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 + 2 6. C2H6 हो जाएगा. C2H6. अगर 2 कार्बन है तो उसको बोलते हैं इथेन. अगर 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं? इथेन. वैसे अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन. ठीक है. ऐसे ही क्या होता है, इसके नेम्स आते हैं. और ये सारे क्या आपके हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन ये सारे आपके क्या है? हाइड्रोकार्बन फैमिली के मेंबर्स है. ठीक है. और उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपका ये आपका क्लोज्ड वाला आ रहा है.
एल्केन्स का दीज मतलब एल्केन्स का ही प्रेजेंटेशन है, लेकिन किस फॉर्म में आ रहा है, क्लोज फॉर्म में आ रहा है। दीज चेन दिस कंटेन क्लोज चेन और रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, दे हैव जनरल फॉर्मूला। अब देखो अगर आप क्लोज चेन के फॉर्म में दिखाया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, CnH2n। जैसे यहाँ पे C अगर आप 1 रखोगे तो H कितना मिलेगा, 2। ठीक है, तो ये देखो क्लोज फिगर बना, ये सारे क्या है आपका क्लोज फिगर बना रहे हैं, देखो इसका ऐसे बनता है फिगर, है ना। आपके हाइड्रोजन एक है और उससे कितने सॉरी कार्बन एक है और कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2, है ना, ऐसे बनता है आपका। तो इसका नाम क्या था, साइक्लोप्रोपेन। कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3। अगर 3 कार्बन है तो नाम क्या होता है, प्रोपेन। और एक साइक्लिक फिगर है तो क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो नाम क्या होता है, ब्यूटेन। और एक साइक्लिक है मतलब क्लोज्ड फिगर है तो उसका आप क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। क्या नाउ लेट्स सी फ्रॉम योर बुक ऑल्सो ना। चलो अब आपकी जो बुक में दिया है उसको भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हम यहाँ पे पहले आ जाते हैं, क्या लिखा है, वी रीड अबाउट डिफरेंट कोवेलेंट कंपाउंड इन द चैप्टर ऑन केमिकल बॉन्डिंग। We are introduced to covalent compound of hydrogen with the different elements like nitrogen, oxygen and carbon. Recall that the covalent compound of nitrogen and hydrogen is called ammonia, and water uh, is one of the covalent compound of hydrogen and oxygen. What are the names of the covalent compound formed by the hydrogen and carbon? मतलब इसमें ये बता रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसका कंपाउंडिंग ऑक्सीजन के साथ होता है, नाइट्रोजन के साथ होता है, तो उसका नाम, नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अमोनिया। नाइट्रोज ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वाटर। तो जब आपका जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ कंबाइन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। We saw some of them in our previous chapter, such as methane, ethane, 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 etc. In fact, there are many more compounds formed by carbon and hydrogen, and not just these three. The compound of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया अभी कि कंपाउंड्स ऑफ, क्या बताया मैंने आपको, इसको आप लोग हाईलाइट कर लोगे, ठीक है, आपके पास बुक है तो इसको हाईलाइट करोगे सब। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स। Nitrogen, oxygen, etc. make one or two covalent compound with hydrogen, but carbon make a large number of hydrocarbon with hydrogen. मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे आपके क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से बनते हैं यहाँ पे, कैटनेशन क्या होता है, मीथेन इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन। ये जो आपका हाइड्रो कार्बन फैमिली है इसको हम पूरी फैमिली बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो आपका हाइड्रोकार्बन फैमिली का पहला मेंबर क्या होता है, मीथेन, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4 एंड इट्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज CH4, मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। Here one atom of carbon is bonding with 4 hydrogen atoms. If we remove a hydrogen atom from methane, we get methyl group. अब मिथाइल ग्रुप क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्या है, CH4 है, CH4 है, तो CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दें, इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर दें, तो क्या बन जाएगा, CH3। ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा दोगे तो क्या होगा, CH1 2 3, CH3 हो जाएगा। तो जो CH3 होता है इसको बोलते हैं मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं, याद रखोगे आप लोग। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। और CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। CH3 को क्या बोलते हैं, यहाँ से CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। CH3 क्या हो गया आपका, मिथाइल ग्रुप। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, if we replace one hydrogen of methane by a methyl group। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो CH4 है, मीथेन है, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दो, एक हाइड्रोजन को रिमूव करो और उसकी जगह पे क्या ऐड कर दो, CH3, एक और मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, एक और मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो। मतलब एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के एक और क्या डाल दो उसके साथ में, CH3 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा, क्या बनेगा, CH3
सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बनेगा? यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ और उसके साथ उसके जगह पे एक और मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप को और ऐड कर दो। तो आपका जो नया कंपाउंड बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, वो क्या होगा? CH3 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो CH3 हमने ऐड किया है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके? 2 है। 1 2 कार्बन है। तो जहाँ पे 2 कार्बन आते हैं उसको क्या बोलते हैं? इथेन। अगर आपके 2 कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं? इथेन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज इथेन एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2। कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। C2H6। In ethane 2, we can replace one hydrogen atom by methyl group. अब यहाँ से क्या बोल रहा है? एक और हाइड्रोजन हटाओ। ये वाले हाइड्रोजन को फिर से यहाँ से हटा दो। ठीक है, ये जो इथेन है इसमें से एक और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करो और इसमें क्या ऐड कर दो? एक और मिथाइल ग्रुप CH3 को ऐड कर दो। तो क्या बनेगा आपका? देखो चेन लंबी होती जा रही है ना। पहले हमने CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाया और CH3 को ऐड कर दिया। फिर CH3 में से हमने क्या कर दिया? एक और हाइड्रोजन हटा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? फिर से एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये हो गया आपका CH3 CH2 और ये क्या होगा? CH3। ये कार्बन को बीच में लाना है ना, ये बीच में था। देख लो फिर से, कंफ्यूज नहीं होना। ये यहाँ पे क्या था आपका? ये है CH3 है ना, CH3 है। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे एक और CH3 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा फिगर आपका? CH3 ये पहले से था, ये CH3 था, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के फिर से क्या ऐड कर दिए? मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए हैं। ये कर दिए, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ 1 2 3 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे पास? 8 है ना। तो जहाँ पे 3 कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन। ठीक है, और देखो ये चेन जो लंबी हो गई, लॉन्ग चेन बनी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? जितने चाहे उतने मिथाइल ग्रुप्स ऐड करके इस चेन को लंबा बना सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे यूजिंग द कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन। अब देखो मैंने आपको पहले बताया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि हाइड्रो कार्बन जो होते हैं इसमें कार्बन के बीच में क्या होता है? कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में हम क्या देखते हैं? बॉन्ड्स देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। उसके अकॉर्डिंग क्या आता है? इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी क्या है आपका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ठीक है, ये हो गया आपका। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि जहाँ पे सिंगल जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। और जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन्स बोलते हैं। जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइंस बोलते हैं। तो एल्केन्स में क्या होता है? ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखोगे आप लोग, जहाँ पे देखो ये दे रहा है आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, और ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चर। जहाँ पे कंडेंस मतलब जो हम लिखते हैं उसको फॉर्मूला, आप सबको आप डायग्रामेटिकली शो नहीं कर सकते तो आप ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर आपका यहाँ पे जो C है, कार्बन क्या है? 1 है, तो H कितना है? 4 है ना। कंडेंस स्ट्रक्चर क्या है? CH4। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा? CH4। मतलब यहाँ पे आपका 1 कार्बन और कितने हाइड्रोजन है? 4। तो ये क्या आपका कंडेंस स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो एल्केन्स जो बनता है, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, वहां पे उसका नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स मतलब क्या होता है? जो रूट नेम के बाद आता है उसको सफिक्स बोलते हैं। रूट नेम क्या होता है? ये रूट नेम आता है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कारण। ये रूट नेम किससे आता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन 1 है, कार्बन क्या पे 1 है, तो मीथ पढ़ते हैं। अगर 2 कार्बन से तो ईथ पढ़ते हैं, 3 कार्बन से तो प्रोप, 4 कार्बन से तो ब्यूट, 5 कार्बन से तो पेंट और 6 कार्बन से तो हेक्स। ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग अगर हो रही है तो उसके साथ में हम सफिक्स ऐड करेंगे ANE। क्या ऐड करेंगे? ANE। तो उसका पूरा नाम क्या बन जाएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। क्लियर है?
आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग क्या आता है, रूट नेम आता है, और उसकी सिंगल बॉन्डिंग अगर एल्केन्स है तो क्या लगाते हैं, सफिक्स ए एन ई लगाते हैं। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें सफिक्स क्या लगता है, ए एन ई। रूट नेम के साथ क्या लगेगा, सफिक्स ए एन ई। तो ये होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इतना क्लियर है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। देन नेक्स्ट आपका है नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स। इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है।